today we have the mock interview with Aman. So hi Aman. So give the introduction once. अपना introduction देना Okay. है. Okay, sir. Uh, my name is Aman Chaudhary. I am from Gorakhpur. Currently, I am living in Noida, and I have completed my graduation in electronics and communication engineering. And now, during my engineering, uh, I have done project wireless and communication, wireless and environment monitoring system. And now during my training I have done some projects like synchronous and asynchronous FIFO, AHB protocols, and APB and I2C, UART, etc. Okay. And thank you. Tell me the difference between latch and flip-flop first. Okay, latch is the level sensitive, and flip-flop is the age sensitive. And हम्म. वो तो uh, बहुत सिंपल है और बताओ और दो तीन चीजें. okay, sir. आगे आपका बनाएंगे. हम्म. Sir, the digital, can you skip the digital part? Because I'm Okay. not Tell me the setup time and hold time difference. Difference between setup time and hold time. setup type and whole time. As per my knowledge, I have considered setup time is that time when the input signal is completely. Can I draw the waveform? Then I हाँ हाँ हाँ. You explain. can draw. You can draw. Okay, sir. Uh, sir, can you see the waveform? हम्म. This is the clock and this is the input. Sir, this is the हम्म. clock. The setup time is that when the clock is तो rising बिलर हो and रहा है. बिलर हो रहा yes, है. क्या sir? बिलर हो रहा है नोट तो बिलर हो रहा है. अब सही है. Okay, sir. Yes, sir. Sir, this is the clock signal and हम्म. this is the input of the signal. When we ages of the clock, the setup time is that when the complete input are set up, the time difference between sir input is set, so it is a setup time, and whole time, sir, I don't know, and I can't remind it's whole time. ठीक है. एक बार फर्स्ट चेक करो डायग्राम तो सही है. ओके. टेल मी राइट द इक्वेशन ऑफ द बोथ सेटअप टाइम एंड होल्ड टाइम. Equation of setup time and whole time. I sorry, sir, I cannot. ओके. टेल मी व्हाट मैट्रिक्स लिबर्टी. ओके. टेल मी व्हाट ब्लॉकिंग एंड नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट. Okay, sir. Blocking. First of all, I answer the blocking assignment. Blocking assignment is a sequentially executing blocking where it is used in uh, combinational logic, and non-blocking assignment is the parallel executing statement where it is used in sequential logic. Yes, एग्जाम. sir. Example. Can I write example? Okay, sir. Sir, this is the. Can you see this my page? हेलो. देख ही नहीं रहा. सर नहीं दिख रहा. नहीं. सर अब. वो ब्लर हो रहा है ना. तुमने बैकग्राउंड ब्लर किया हुआ है ना इसलिए नहीं दिख रहा. तो मैंने. सर मैंने अभी थोड़ा दिख रहा है. हाँ, अभी थोड़ा सा दिख रहा सर दिख रहा है. सर है. दिस इज द blocking example and this is the non blocking example. Can I explain the code?
Sir, in blocking assignment, the execution is going to be sequentially. It means when this A equal to B is executed, at that time B equal to C is blocked, and when B equal to C is executed, then that time A equal to B is blocked. So in that case there is occurrence of um in that code, uh, last is we can सर इसमें क्या होता है, सीक्वेंसली जो कोड होता है, पहले इसको ये चलेगा तो सेकंड वाला ब्लॉक रहेगा, एंड पहले ऊपर वाला डन हो जाएगा, देन उसके बाद सेकंड वाला चलेगा। बट इसमें नॉन ब्लॉकिंग असाइन क्या हो रहा है सर, कि एलएचएस ये जो बी एंड ए लेफ्ट हैंड साइड के हैं सर, पहले वो चलते हैं, आफ्टर दैट ये ए एंड बी में राइट हैंड साइड में असाइन होंगे। ये वो पैरेलली वो चलते हैं ही सर नहीं दिख रही दोनों। तुम्हारी तुम्हारे नोटबुक ही नहीं दिख रही। क्या सर? वो दिख ही नहीं रहा कुछ। सर नोटबुक। अब इंटरव्यू में तुम ऐसे थोड़ी दिखाओगे, इंटरव्यू में दिखाओगे तो भाई भगा देगा वो। तो कैन आई राइट द कोड? हाँ जो भी है, शेयर। मतलब अच्छे से करो जो भी रिप्रेजेंटेशन है बनाना है, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन तो आप ही को बनना है वहाँ पे इंटरव्यू में, है ओके ना। सर, मैं शेयर स्क्रीन शेयर करता हूँ अब एक सेकंड में। कैमरा खराब है, ये खराब है, वो तुम्हारी दिक्कत है, वो इंटरव्यू की दिक्कत नहीं है। सर कैमरा मेरा खराब है क्या? नहीं, कैमरा जो भी है या फिर ब्लर का जो बैकग्राउंड जो भी है। मैं ब्लर नहीं किया हूँ सर, मुझे अब मैं अपने आप को ही नहीं देख पा रहा हूँ, पता नहीं क्यों मेरे। ठीक है, दिखाओ दोबारा से, या फिर स्क्रीन पे लिख दो, आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, स्क्रीन पे वही लिखो। सर, मैं वो ईडीए पे लिख दे रहा हूँ वही। सर दिस इज द एग्जांपल ऑफ ब्लॉकिंग असाइनमेंट, and this is the example of non-blocking assignment. In हम्म। this in blocking assignment, the execution will execute sequentially. When a equal to b is assigned, at that time b equal to a is blocked. But in blocking assignment, non-blocking assignment, execution is performed parallelly. It means that at a first passage of clock, b and a both are assigned parallelly in right side of a and b. हेलो। हाँ हाँ, ठीक आई है, एम ठीक। ओके सर। तो नेक्स्ट सर। आपको रीजन्स के बारे में नहीं बताया इसमें, रीजन्स के क्या बारे सर? में, रीजन्स के टाइमिंग बारे में। रीजन। सर टाइमिंग रीजंस। हम्म। सर एट द दिस सर ये जो सीक्वेंसली परफॉर्म हो रहा है, ये जीरोवेट टाइम पे सर, एक्टिव रीजन में सर ये हो रहा है। एंड ये जो नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट है, ये नॉन ब्लॉकिंग टाइमिंग पे हो रहा है सर, टाइमिंग रीजन पे। एक देर इज अ फोर रीजन ऑफ टाइमिंग रीजन: एक्टिव रीजन, I forget, and third one is non blocking reason, जिसमें सर फर्स्ट रीजन में जो होता है वो डॉलर डिस्प्ले एंड इनिशियल ब्लॉक्स एंड ऑलवेज ब्लॉक्स इज ऑल्सो
और सर नॉन ब्लॉकिंग रीजन में नॉन ब्लॉकिंग, सर जैसे ये नॉन ब्लॉकिंग स्टेटमेंट का ये सर सिंबल है, ये नॉन ब्लॉकिंग का सर सिंबल है, ये इतना। तो ये नॉन ब्लॉकिंग रीजन में परफॉर्म होता है सर। और दो रीजन के बारे में सर आई फॉरगेट इट, करंटली आई फॉरगेट इट सर। Okay. Tell me about asynchronous reset and synchronous reset. Synchronous reset, asynchronous reset. एसिंक्रोनस रीसेट एंड सिंक्रोनस रीसेट। Hmm. दिस इज द वेरी इन सर, इन सिंक्रोनस रीसेट, सॉरी सर आई कैन नॉट रिमेम्बर। Okay. Syntax पता है इन दोनों का सिंटेक्स पता है? किसका सर? एसिंक्रोनस सिंक्रोनस का यस सर। ब्लॉकिंग और नॉन ब्लॉकिंग कहाँ कहाँ पे यूज करता है? ब्लॉकिंग कहाँ यूज करेंगे, नॉन ब्लॉकिंग कहाँ यूज करेंगे? सर ये जो ये नॉन ब्लॉकिंग स्टेटमेंट है, ये सर ये ऑलवेज कॉम्बिनेशनल लॉजिक में इस्तेमाल करते हैं, जब भी हम कॉम्बिनेशनल लॉजिक लिखते हैं उसमें यूज करते हैं। एंड दिस वन सर, नॉन ब्लॉकिंग स्टेटमेंट इज ऑलवेज यूज इन सीक्वेंशियल सर्किट्स। ओके। टेल मी अबाउट सीडीसी। सीडीसी पता है? यस सर, क्लॉक डोमेन क्रॉसिंग। बताओ। नहीं पता? नहीं सर। डिजाइन अ सर्किट डिवाइड बाय थ्री। क्लॉक डिवाइड बाय थ्री सर्किट। फ्रीक्वेंसी डिवाइडर सर। हाँ। ओके सर। हम्म। सर एक सेकंड, मैं वो लॉजिक लिख रहा हूँ सीक्वेंशियल डिवाइड बाई थ्री का। सर एक्चुअली उसमें लॉजिक जो है वो मुझे सीक्वेंशियल डिवाइड बाई टू। divide clock is come back to the output is come back to the input E. Ah, I got it. Input clock. The input RST and one output. Yes, one output. So,
This is the register for pointer 1 down 0 और ये काउंट करेगा नेगेटिव नेक्स्ट नेक काउंट नेगेटिव काउंट and then logic is that always if equal to clock center is divided by इसका क्या होगा clock equal to pause yes pause I'm right yes yes नेगेटिव क्लॉक जब नेगेटिव क्लॉक आएगा एक क्लॉक होगा दूसरा क्लॉक एक दो से लेकर चार से फिर रीसेट तो इसमें नेगा और सिर्फ और सिर्फ
Sir, done. Can I explain the code, sir? हाँ. Okay. So for that, can I add a waveform? हम्म. 1 moment. File name. FSDB dump. Hmm. Are we shooting?
नो नो। क्लॉक आउट, क्लॉक इन। अनुमान दे रहे हैं। Why are not signed out? Clock assign। तो देख लेना इसको फिर, हाँ, या क्या करना है अभी? मैं सर ऐसे ही एक्सप्लेन कर दूं अपने कोड को। नहीं नहीं, अगर आउटपुट तो आना चाहिए ना, आउटपुट तो आना चाहिए। एक्चुअली सर दिस इज द आउटपुट क्लॉक हम्म, एंड ये आउटपुट क्लॉक सर, ये मैंने असाइन किया है इस आउट क्लॉक को नेग एज और ये पॉज एज के दोनों के ऑरिंग करके सर, ऑरिंग करके दोनों को और करके, मतलब दोनों में से अगर कोई एक भी वन रहा तो आउटपुट पे वन आएगा सर। सर तो टेस्ट बेंच ने लिखा इसका। नहीं सर, टेस्ट बेंच नहीं, मतलब टेस्ट बेंच में ही लिख दिया मैंने इसको। ये रहा सर। मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कोड को ही सर। हम्म, सर यहाँ पे मैंने दो रेस्ट टाइप की जिसको जो वैल्यू को होल्ड करेंगे, दो मैंने पॉइंटर ले लिए यहाँ पे। और मेरे इनपुट क्लॉक हैं, इनपुट रीसेट है सर। रीसेट सर ये जनरली इसलिए लिया है ना कि इनिशियली अगर रीसेट को हम लोग पूरी कंप्लीटली बंद करना चाहें सिमुलेशन को, तो मैं रीसेट को ऑन कर दूंगा तो वो जीरो दे देगा, फ्रीक्वेंसी को कोई फ्रीक्वेंसी नहीं रहेगी। एंड एक आउटपुट क्लॉक लिया है जिसमें आउटपुट जो फ्रीक्वेंसी हम इनपुट पे देंगे उसका ये डिवाइड बाई थ्री आउटपुट क्लॉक रहेगा सर ये। इसके लिए हमने दो क्लॉक पॉइंटर ले लिए हैं सर। जैसे कि सर पॉजिटिव क्लॉक पे, जब पॉजिटिव क्लॉक पे रहेगा सर, तो जो मेरा ये इफ वाले कंडीशन तो यू नो वेरी वेल सर कि इफ का कंडीशन चलेगा तो ये जो हमारा काउंटर है ये हमेशा जीरो रहेगा। लेकिन सर जब ये मैंने इसको फ्रीक्वेंसी डिवाइडर सर दो क्लॉक मतलब सर अगर सिग्नल बनाए सर, पॉजिटिव पॉजिटिव टू क्लॉक का अगर लेते हैं, अगर पॉजिटिव क्लॉक इक्वल टू टू रहा सर, पॉजिटिव सर दो क्लॉक कंसेक्यूटिव क्लॉक जो पॉजिटिव है सर, अगर वो रहा तो हमारे जो सर पॉजेज के अंदर वो जीरो आ गए। क्योंकि सर दो पॉजिटिव इधर सर और दो पॉजिटिव और दो निगेटिव के सर बीच में जो होता है वो थर्ड फ्रीक्वेंसी डिवाइडिंग बाई थ्री आएगा सर। कैन यू अंडरस्टैंड माई वर्ड सर? हेलो। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक कर लेना। मेरे को तो ठीक नहीं लग रहा, कुछ इशू आ रहा है इसमें। कोई नहीं, एक बार क्रॉस चेक करना, है ना। ओके सर। और बहुत ज्यादा मैंने इम्प्रूव की लॉजिक जरूरत है। सर, लॉजिक आई थिंक मैंने सही लगाया सर, क्योंकि मैं ऐसे ही वेव फॉर्म के थ्रू मैंने ये लॉजिक लगाया है सर। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक कर लेना, आउटपुट टेस्ट बेंच लिख के, है ना। ओके सर। और अभी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है बहुत ज्यादा। तो अभी क्या करना है, कंटिन्यू करना है, क्या करना है बताओ। सर वो सिस्टम वेरिलॉग एंड यूवीएम भी पूछ ले तो फिर मैं अपने आप को उस हिसाब से प्रिपेयर कर लेता। ओके, तो आर्किटेक्चर बनाऊँ यूवीएम का। क्या सर? मेक अ टेस्ट बेंच आर्किटेक्चर ऑफ यूवीएम। आर्किटेक्चर ऑफ यूवीएम। हाँ, टेस्ट बेंच ऑफ आर्किटेक्चर। तो पहले आता है वो, क्या कहते हैं उसके अंदर तो सारे कनेक्ट करते हैं पहले, पहले सीक्वेंस से।
हम्म, check answer, and then come back ये क्या to। कर रहे हो तुम? मैंने सर मैं ड्रॉ करने एक, के लिए बोला, आर्किटेक्चर का डायग्राम। क्या सर? आर्किटेक्चर का डायग्राम बनाना है। सर आर्किटेक्चर का डायग्राम बनाना है। हाँ। तो सर मैं कैसे बना सकता हूँ? सर यू हैव एनी आइडिया हाउ टू मेक पेंट पे डायग्राम? बना दो, पेंट पे बना दो। क्या सर? पेंट पे, या ओके पेन सर। पेपर पे ही बना दो। तो देख लो अपने हिसाब से जैसे बनाना। सर मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ सर, जैसे ये जो कंप्लीट एक सर टॉप मॉड्यूल होता है सर, ये टॉप मॉड्यूल एक सर बॉक्स, सर ये हम्म, सर पेन एक पेपर बना दो, कोई नहीं, पेन पेपर बना दो। सर एक टॉप मॉड्यूल के अंदर कंप्लीटली मेरा ट्रांजेक्शन क्लास और सीक्वेंस आइटम एंड सीक्वेंस होता है। देन इनसाइड द टॉप वी कैन वी कैन यूज एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के अंदर सर एजेंट्स होते हैं, मल्टीपल एजेंट्स हो सकते हैं सर एनवायरमेंट के अंदर। एंड टॉप के अंदर ही सर वो आते हैं, क्या कहते हैं, टॉप के अंदर सर फिर एंड स्कोर बोर्ड एंड अदर थिंग्स आते हैं सर, स्कोर बोर्ड। एंड उसके बाद सर जो सबसे ऊपर टेस्ट रहता है सर, सबसे ऊपर जो टॉप, नहीं सर ये टेस्ट के अंदर आते हैं ये सब। जो सबसे टॉप रहता है सर, टॉप के अंदर इंटरफेस एंड वो ड्यूटी सर वो आते हैं। तो मैं टोटल ब्लॉक बता दे रहा हूँ आपको। टॉप, टेस्ट, इनसाइड टेस्ट इज एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के अंदर एक एजेंट्स। बार पेपर पे मेरे को लिख के दिखा दो, है ना, ऐसे समझ में नहीं आया कुछ। ओके सर। इसको स्क्रीन को हटाओ, पेपर दिखाओ। ओके सर। सर कैन यू सी माय पेज? हम्म। सर ये टॉप है, टॉप के अंदर डीवीटी एंड टेस्ट आते हैं सर। और हम्म। ये टेस्ट जो होते हैं सर, ये एक्चुअली टीबी टेस्ट बेंच। और इस टीबी तुमने के ब्लर अंदर किया सर, हुआ है क्या? बैकग्राउंड बैकग्राउंड ब्लर किया हुआ है क्या? नहीं सर मैंने बैकग्राउंड मैंने ब्लर 100% नहीं किया। ब्लर। एक सेकेंड सर, मैं सेटिंग में एक बार चेक कर लेता हूँ। सर कुछ चेंज हुआ क्या? अब ठीक है हाँ सर? अभी ठीक है। अभी फिर वैसे ही होगा। स्टेबल कर दो उसको थोड़ा। हाँ दूर से है, इतना दूर से है। सर ठीक है। हाँ अभी सही है थोड़ा। सर ये सर एक टॉप दिख रहा है, ये दशक टॉप है ये। हम्म। टॉप के अंदर सर दो ब्लॉक हैं मेनली, एक ड्यूटी है और एक टेस्ट ब्लॉक है सर। हम्म। और ड्यूटी और टेस्ट ब्लॉक को ये इंटरफेस के थ्रू हम लोग कनेक्ट किए हैं सर। ये हम्म। जो एरो बना हुआ है सर इंटरफेस का है। हम्म। और इनसाइड द ड्यूटी के अंदर सर डिजाइन एंड टेस्ट के अंदर जो हमारा आरटीएल का डिजाइन कोड है वो हम लोग लिखते हैं। ये टेस्ट बेंच जो है इसमें हम लोग टेस्ट कोड लिखते हैं वेरीफाई करने के लिए। यूवीएम के आर्किटेक्चर में सर टेस्ट के अंदर दो ब्लॉक हैं सर, ये टेस्ट के अंदर दो ब्लॉक पाएंगे और ये तीसरा ब्लॉक पाएंगे सर। दो स्मॉल ब्लॉक्स हैं एंड ये तीसरा सर। ये दो ब्लॉक हैं जो ये ऑब्जेक्ट को शो कर रहे हैं सर, ये सीक्वेंस आइटम है। और एंड ये छोटा वाला सर सीक्वेंस है, यूवीएम सीक्वेंस। एंड ये जो ब्लॉक है सर, ये सबसे बड़ा वाला एनवायरमेंट है। एंड देन सर उसके अंदर दो ब्लॉक जो पा रहे हैं वो एजेंट्स, इसके अंदर मल्टीपल एजेंट्स हो सकते हैं सर। और इनसाइड द एजेंट्स मैंने बनाया नहीं क्योंकि ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता। इनसाइड एजेंट सर, अगर एक्टिव एजेंट हम लोग ले रहे हैं तो उसके अंदर तीन रहेंगे सर। एक्टिव एजेंट में सर तीन रहेंगे और पैसिव एजेंट में ओनली मॉनिटर रहता है सर।
जो एक्टिव एजेंट में सर सीक्वेंसर, ड्राइवर एंड मॉनिटर, तीन कंपोनेंट इसके अंदर रहेंगे सर, एजेंट्स के अंदर। अभी मैं बेसिकली मान के चल रहा हूँ कि ये एक्टिव एजेंट है सर। हम्म। सर दिस इज द कंप्लीट आर्किटेक्चर ऑफ यूवीएम वेरिफिकेशन। इसको बैकग्राउंड को सही करो, बैकग्राउंड हटाओ इसको। ब्लर किया हुआ है जब भी नहीं है दिख रहा। इंटरव्यूअर 100% भगा देगा ऐसा करोगे तो, क्योंकि सर इंटरव्यू को मैं लेना नहीं देना समझ है। पा रहा हूँ मेरे कैमरे में क्या एक्चुअल तो प्रॉब्लम आ रही। वो तो मैं सही चेक। करना पड़ेगा ना, वो इंटरव्यूअर थोड़ी सही करेगा। हाँ हाँ सर, सर नेक्स्ट टाइम मैं जरूर इसको इम्प्रूव कर हंड्रेड लूंगा। परसेंट मैं कह रहा हूँ ना, वो जब ही खत्म कर देगा इंटरव्यू। ओके सर। ठीक है। एक्चुअली सर मैं अपने आप को ये देख नहीं पा रहा हूँ, जिससे मैं देखता अपने आप को तो मुझे पता चलता है ना कि मैं कैसा वो दिख नहीं रहा होता, हूँ। वो नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट इज टेल मी व्हाट एक्टिव एंड पैसिव एजेंट, राइट? एजेंट के बारे में बात कर रहा हूँ। ओके सर। क्या डिफरेंस होता है? सर दोनों में डिफरेंस ये है कि इन एक्टिव एजेंट इसमें तीनों कंपोनेंट सर मौजूद रहेंगे, सीक्वेंसर, मॉनिटर एंड ड्राइवर। बट इन पैसिव एजेंट ओनली यूज मॉनिटर। सर रीजन मैं सर ये डिफरेंस कंप्लीट हो गया। रीजन क्यों रखते हैं सर? एक्टिव एजेंट को यूज करते हैं हम लोग सर हमेशा समथिंग ड्राइव करने के लिए सर, समथिंग कंपोनेंट को ट्रांजेक्शन क्लास को कंप्लीटली प्रोवाइड करने के लिए। लेकिन जो पैसिव एजेंट होते हैं ओनली वो लोग उसको हम लोग यूज करते हैं ओनली मॉनिटरिंग के लिए सर। मॉनिटरिंग एंड परफॉर्मेंस चेक करने के लिए यूज करते हैं पैसिव एजेंट्स को। सो इसीलिए एक्टिव एजेंट में तीनों कंपोनेंट होते हैं, और जो पैसिव एजेंट रहते हैं उसमें सिर्फ मॉनिटर रहता है, ड्राइवर नहीं रहेगा। सिर्फ ओनली मॉनिटर रहता है सर। देयर इज अ मेन डिफरेंस बिटवीन हम्म, एक्टिव एंड पैसिव एजेंट्स। ठीक है। टेल मी व्हाट fork and join, fork and join। फॉक एंड जॉइन। हम्म, सब फॉक एंड जॉइन इट्स सर ये जनरली इनिशियल ब्लॉक की तरह होता है, पर इसमें क्या होता है फॉक एंड जॉइन में सर जो एग्जीक्यूशन होता है वो पैरेलली होता है। यस हम्म, पैरेलली होता है, एंड आफ्टर फॉग, फॉग के अंदर लिखी हुई सारी चीजें उसके बाद ही ज्वाइन का, फॉग के अंदर की चीजें कंप्लीट होने के बाद उसके बाद ही ज्वाइन के अंदर मतलब ज्वाइन के ब्लॉक की चीजें एग्जीक्यूट होंगी। और इसको लाया इसलिए गया क्योंकि रेस अराउंड कंडीशन से बचने के लिए। सर ये एक ब्लॉक में फॉक एंड जॉइन एंड इनिशियल ब्लॉक बोथ वर्क एज अ सिमिलर, बट जब हम लोग डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल एंड डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स पे वर्क करते हैं तो उसमें मल्टीपल इनिशियल ब्लॉक जो कि जीरो एट टाइम पे सिमुलेट करते हैं। जब इसको हम टॉप मॉड्यूल के अंदर इनिशियल ब्लॉक के अंदर लिखेंगे तो सर जीरो एट टाइम पे सारे फाइल के इनिशियल ब्लॉक चलेंगे। तो मे बी नोट सर कि उसमें रेस अराउंड कंडीशन जनरेट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। इंस्टेड ऑफ इनिशियल ब्लॉक यूज करने के बजाय हम लोग टॉप मॉड्यूल में फॉक एंड जॉइन का यूज करते हैं। कि फॉक में सर जो एग्जीक्यूशन होता है वो पैरेलली होता है, एंड आफ्टर कंप्लीटिंग द फॉक देन वी विल कंटिन्यू द जॉइन। और इसमें भी सर तीन होते हैं, फॉक जॉइन नन, फॉक जॉइन एनी एंड फॉक जॉइन सर। ठीक है। ट्राई। ओके, टेल मी द डिफरेंस बिटवीन रेज एंड वायर। रेज एंड वायर ओके सर। बेसिकली सर रेज इज रेज इज यूज फॉर स्टोरिंग द डेटा which is used in procedural block, and a wire is used in continuous assignment statement, and wire is used in whenever we want to join two component in between two components सर। दो डिवाइस और दो डिवाइस या दो कंपोनेंट के बीच में अगर मुझे कनेक्शन करना है तो वी आर प्रिफरिंग द वायर, जहाँ पे हमको स्टोरेज की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्टली आउटपुट को डायरेक्टली एक डेटा को दूसरी जगह पे एज इट इज पहुंचाना रहता है। वेयर जहाँ पे हम लोग को स्टोर करने की जरूरत पड़ती है वहां पे हम लोग रेज का इस्तेमाल करते हैं सर। तो पता कैसे चलेगा कहाँ पे स्टोर करना है? आप एग्जाम्पल बताओ। ओके सर, जैसे कि सर फ्लिप फ्लॉप में हमको प्रीवियस डेटा को होल्ड करने के लिए यूज करना रहता है। जैसे कि प्रोसीजरल ब्लॉक और सर कंटिन्यूअस असाइनमेंट
अगर बुलियन एक्सप्रेशन पता है तो सर वो हम लोग कंटिन्यूअस असाइनमेंट में आते हैं। और हम लोग को अगर सीक्वेंशियल लॉजिक लिखना रहता है तो हम लोग इसको यूज करते हैं, प्रोसीजर ब्लॉक को। और कैसे पता चलेगा कि हमको स्टोर करना है नहीं? सर जहाँ आउटपुट हो रहा है सर, जहाँ आउटपुट निकल रहा है वहाँ सर, आउटपुट पे जनरली हम लोग रेज, क्योंकि आउटपुट को हमको स्टोर करने की जरूरत पड़ती है, इसलिए आउटपुट की जगह हम लोग रेज रेज इस्तेमाल करते हैं ताकि वो स्टोर हो सके। एंड इन बिटवीन टू, जैसे सर कि दो एंड गेट लेते हैं और उन दो मतलब एक एंड गेट से अनदर एंड गेट ड्राइव हो रहा है, तो उस बीच में दो कनेक्शन के बीच में हम लोग वायर का इस्तेमाल करते हैं सर। बिकॉज उसके ड्यूरेशन में हम लोग को यूज नहीं कर, मतलब वो स्टोर करने की जरूरत नहीं है सर। मैं डायग्राम बना के दिखा दूं सर? हम्म। सर हियर, सर आपको स्क्रीन दिख रही है, मेरी पेज दिख रही है ये वाली डायग्राम? सर ये W1 एंड W2, सर ये वायर है, जैसे कि हमें ये एंड जो इन बिटवीन द टू टू लॉजिक गेट सर, हम किसी दो लॉजिक गेट या दो सर्किट्स के बीच में जहां डेटा को होल्ड नहीं कराना है या ना स्टोर कराना है सर, वहां हम लोग जैसे कि वायर इज वर्क एज ए सिंपल वायर सर। वो उसमें जब तक करंट फ्लो करेगा वो कनेक्शन प्रोवाइड रहेगा, जब करंट ऑफ हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली जीरो पे आ जाएगा सर। जब ये आउटपुट ड्राइव सर, इसका एंड गेट का आउटपुट ड्राइव होगा, वो एट अ सिंगल कंटिन्यूसली सर इस एंड गेट को मिल जाएगा। इस बीच में हम लोग को इस डेटा को होल्ड मतलब स्टोर करने की जरूरत नहीं है। दैट्स वाई वी कैन यूज वायर एंड आउटपुट सर हियर। हमको यहाँ पे आउटपुट रिस्टोर करने की जरूरत है कि आउटपुट क्या है, इस वजह से हम लोग यहाँ रेज टाइप पे चीजें यूज करते हैं सर। ठीक है। एक बार अच्छे से देख लो चीजों को, है ना। ठीक ठीक। है, तो पहले अभी दोबारा से रिवीजन करो पूरा सिलेबस का, फिर हम नेक्स्ट देखते डिजिटल हैं। मेरा बहुत वीक है सर, मैं डिजिटल मैंने वो तो पढ़ा ही नहीं। कंपनी तो डिजिटल ही पूछेगी ना, अब हाँ डिजिटल को हाँ। ये मना थोड़ी कर दोगे। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। मैं स्ट्रॉन्ग ही क्या है, स्ट्रॉन्ग ही क्या है, तुमने मेटासिटी नहीं बताया, हाँ, सीडीसी नहीं सेटअप बताया। एंड होल, बहुत सेटअप बहुत एंड होल टाइम भी बहुत अपने सिंपल सही से। क्वेश्चन है ये। 100% पूछे जाएंगे इंटरव्यू में। 100%, ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है। सेटअप, मेटा पूरे एंड। पूरा सिलेबस होगा। इवन आप सब्जेक्ट वाइज मॉक इंटरव्यू दे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अच्छे से दो, टाइम वेस्ट करने के लिए मत दो। हमारा भी टाइम वेस्ट है, तुम्हारा भी टाइम वेस्ट हो। सब मुझे और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा ना। हाँ हाँ। सर किसमें ज़्यादा मुझे फोकस करना है, क्या मेरा यूवीएम और ये सिस्टम वेरिलॉग ओके ओके, या इसमें भी बहुत ज़्यादा? नहीं, इम्प्रूवमेंट हो, अभी तो कोडिंग तो पूछी नहीं है। अभी तो यस। पूरा इम्प्रूवमेंट करना है अभी तो, है ना, क्योंकि स्टार्टिंग में वो डिजिटली पूछेगा, डिजिटली आंसर नहीं तो नेक्स्ट कैंडिडेट बुलाएंगे, है ना। ओके सर। डिजिटल। ठीक। ओके फाइन, थैंक यू। थैंक यू सर।